زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ ابھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں موقع ملے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے، بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں، کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے چلا گیا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی، منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں گے، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں گے۔ تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی۔ پتا تھا ووٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے، تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ ایک دو دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم، اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا آپ کو پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا، میں نے کہا پریشان ہے، ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا، اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا۔ اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں، اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی، لیکن بعض لوگ تکلیف میں کیسے مینج کریں گے؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں، ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے، مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا، لہذا پیچھے لگ گئے۔ کون اشک شوئی کرے؟ اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز، اعتراف جرم، اپنی غلطی کا احساس، یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی ٹی وی پر آتا ہے اور وہ جب
इंटरव्यूज देने शुरू करते हैं तो क्या हर पार्टी का सरबराह माज़अल्लाह मासूम है? उनसे गलतियां नहीं होती? क्यों नहीं आप एतराफ़ करते कि यहाँ हमारा लीडर भी भूलता है, खता करता है? क्यों आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं करते? आप इस तरह दिफा करते हैं कि जैसे उसमें कोई कमी है ही नहीं। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, खुदा बनने का शौक ना पैदा करो, इंसान रहो। रब ने तुम्हें इंसान बनाया, वो तुम्हें इंसान देखना ही पसंद फरमाता है। ये क्या तुमने दावे शुरू कर दिए? गलती कोई नहीं होती, ये कैसे हो सकता है वो गलत फैसला करे? आप माने बंदे की तौबा अल्लाह का कबूल करता है। मिशकात में हदीस है सैयदा आयशा सिद्दीका से, हुजूर फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा अतरफा, ये लफ्ज है सरकार के, इस पर गौर कीजिए। फरमाया बेशक जब बंदा एतराफ़े जुर्म करता है रब की बारगाह में बैठ के, वो मान जाता है या अल्लाह ये मुझसे भूल हो गई, मैं नफ्स के हाथों मजबूर हो गया, ये मुझसे गलती हो गई, शैतान ने बस। इन्नल अब्दा इज़ा अतरफा, बेशक जब वो रब की बारगाह में एतराफ़े जुर्म करे, सुम्मा ताबा, फिर तौबा करे, तो ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह फौरन उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन वो एतराफ़े जुर्म ही ना करे, वो अपनी खताएं ही तलाश ना करे, वो किसी जगह मानने को तैयार ना हो। एतराफ़ करना ये आला दर्जे के लोगों का काम होता है। मान जाना ये बुलंदी इखलाक वाले लोगों। हमसे कोताहियां हो गई। मैं आपकी खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों से परहेज बड़ा ही ज़रूरी है, इसलिए अपनी ज़ात के तवाफ़ से परहेज भी बड़ा ही ज़रूरी है। अपनी ज़ात में उलझ के ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, और देखो मेरी तदबीर से मेरा निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरी हिकमतें बड़ी कामयाब जा रही हैं, देखो मैंने जो सोचा था उसके मुताबिक मनसूबाबंदी ठीक है, मैं कई लोगों पर सबकत ले जा चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ये ज़ात का तवाफ़ है। अपनी ज़ात के तवाफ़ से नीचे उतर कर सोच लें और दो चीज़ें अपने ज़हन में बिठा लें, तय कर लें, ज़िंदगी रूहानियत की तरफ बढ़ने लगी। एक ये चीज़ अपनी ज़हन में बिठा लें कि मेरे अंदर ज़िंदगी में जो कमियां कमज़ोरियां रह गई वो मेरी वजह से है, और अगर कोई खैर मिली है तो वो महज अल्लाह के फजल की वजह से है। मेरी ताकत के सबब कुछ नहीं है, महज फजल इलाही। ये दो चीज़ें जब बंदे में पैदा होती हैं तो उसकी रूहानियत मजबूत होती, वरना तो अपनी ज़ात के चुंगल से लोग आज़ाद ही नहीं होते। एतराफ़ हज़रत माइज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके अर्ज़ की, हुज़ूर बहुत बड़ा जुर्म हो गया। नबी करीम ने तवज्जो ही नहीं की। फिर अर्ज़ की, हुज़ूर भूल गया था। सरकार ने रुख फेर लिया। फिर अर्ज़ की, हुज़ूर भूल गया था। करीम फरमाने लगे, कैसी ज़हनी उलझाव की बात करता है। फिर फरमाया, देखो महसूस करो, होश में तो है। अर्ज़ की, हुज़ूर मेहरबानी कर दे, ये जो एहसास नदामत है सोने नहीं देता, करम नवाजी करें। यानी एक शख्सियत हाजिर बारगाह हुई है, अर्ज़ की, हुज़ूर जुर्म हो गया बहुत बड़ा, सरकार ने तवज्जो हटाई। फिर अर्ज़ की, हुज़ूर भूल गया था, खता हो गई, फिर तवज्जो हटाई। अर्ज़ की, हुज़ूर अगर मेरे लिए तहारत का सामान न किया गया तो मैं बहुत बड़े नुकसान में चला जाऊंगा, करम नवाजी कर दी जाए। फरमाया, देखो लोगों, होश में तो है। या रसूलल्लाह, बिल्कुल होश में। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले जाओ संसार करो। पत्थर मारे गए, संसार किया गया, एतराफ किया, माना, सजा कबूल की, अपने लिए फैसला किया कि मुझे सजा लेनी चाहिए। उनका विशाल हुआ। यहां तक तो मामला उनका था, लेकिन इस एतराफ पर इनाम यह मिला कि महबूब ने फरमाया, गुस्ल कफन करो, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और किसी दरवेश ने कहा था, मरन तो बाद दो मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। सरकार ने इमामत फरमाई, तदफीन हुई। किसी शख्स ने बाद में कहा इसने फलां जुर्म किया है, तो हुजूर फरमाने लगे, चुप कर, तुझे पता है वो कहाँ है इस वक्त? या रसूलल्लाह कहाँ है? फरमाया, जन्नत की नहरों में गोते लगा रहे हैं। और हुजूर फरमाने लगे, इस बंदे ने ऐसी आला तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में इसकी तौबा सारी उम्मत में, फरमाया इसकी तौबा अगर कयामत तक आने वाले सारे उम्मतियों में बांट दूं तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देगा।
सब बख्शे जाएंगे इस एक की तौबा के बाद। क्यों? हाथ बांध के अर्ज की, हुजूर मेहरबानी करें, मेरे से ये गलती हो गई है, शफकत करें, मेहरबानी फरमाएं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में एतराफ वाला मिजाज तो पैदा करो यार। हम तो किसी कोताही को तस्लीम करने को बागबान सारा उजड़ गया, लेकिन कोई माली जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं। घर सारा लुट गया और घर में बसने वाले जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं। खानदान सारा टुकड़े टुकड़े हो गया और जो घर का सरबराह था वो एहसास मानने को तैयार ही नहीं। बड़े बड़े लोगों के मुस्तकबिल दांव पे लग गए। किसी ने कहा था ना, इधर उधर की तू बात कर, मुझे बता के काफिला क्यों लुटा। राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तू कहते हो वो चोर आ गए थे, चोर आ गए थे, तो तू किस बात का पहरेदार था? तुझे भी तो जिम्मेदारी दी थी ना, चोरों को तो आना ही था। ये जो जान छुड़ाते हैं ना, चोर आ गए थे, इनसे फिर पूछना पड़ेगा ना कि चोर अपनी ड्यूटी सही करते रहे और पहरेदार सोए रहे। फिर तो तुमसे ज्यादा चोर जिम्मेदार निकले कि उन्होंने ड्यूटी ठीक की, और तुम काहे के पहरेदार थे, तुम सोए रहे। तो किसी ने कहा था, जो कोई चुनेगा रास्ते के पत्थर उसे जमाना कहेगा राहबर। किसी को ठोकर लगी तो हर मीरे कारवां से सवाल होगा। पूछा जाएगा, जनाब आप आगे लगे हुए थे, आपने गलत रास्ते पे क्यों चढ़ाया? ये ठोकरों वाला रास्ता है तो खड्डे बड़े। इतराफ अपनी जिंदगी में पैदा करें। इतराफ अपनी चीजों में अगर बेहतरी चाहते हैं, आने वाले वक्त को उम्दा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि चलो माजी और हाल के साथ जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल ही ठीक हो जाए। उसके लिए अपने माजी और हाल की कमजोरियों को तराशना पड़ेगा, गौर करना पड़े, फिर ये मामला आगे जाएगा। मेरे भाई, अपनी जिंदगी में हमसे जो कमियां रह गई, पता है अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रखा है और फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ कर दे। करने का काम यह है कि चलो आज से ही सही, चलो अभी से सही। बहुत ज़ईफ़ुल उम्री में, बुढ़ापे में आके भी लोगों ने खैर का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह की रहमत ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। चले किसी वक्त भी, क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला। चलो घर तो पहुंच गया है ना, अपने घर आ गया, अब कहाँ भूला है। तो अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां, बुरे बंदे नूं लब्बन टुरिया जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। अपनी कमजोरियां तलाश करें, उनके लिए अपने आप को कटहरे में खड़ा करें, अपने आप से सवाल जवाब करें, अपने साथ गुफ्तगू करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखा, कुछ ऐसी शख्सियात से मेरा पाला पड़ा। वो बड़े लोग थे, अजीम लोग थे, लेकिन उनके पास बैठकर अंदाजा हुआ कि वो जो है ना, वो अपने आप को नहीं समझते। वो जो हैं वो नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बुजुर्ग खाना काबा में हज के मौके पर गए हुए थे, तो कहते हैं खैमे में सोया था तो किसी के तड़प के रोने की आवाज़ आई, या अल्लाह मेहरबानी करना, क़यामत में रुसवा ना करना। तो कहते हैं मैं तो तसल्ली देने के लिए उठ के बाहर गया कि पता करूं कौन है, और जब मेरी जाके मुलाकात हुई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये तो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी है। आप किसी भी शख्स को पढ़ लेंगे, जो आजकल दावे हैं ना लोगों के, मैं यूं कर देता हूं तो मैं ये, हमारे बुजुर्गों के ये दावे, वो जहां भी मिलेंगे रब के आजिज बंदे ही मिलेंगे। वो जहां भी मुयस्सर आएंगे वो अल्लाह के आजिज बंदे होके ही मुयस्सर आएंगे। एहसास उनके दिलों से अपनी कमजोरियों का कभी गया? हमारे अंदर ये एहसास नहीं है, बढ़ोतरी का एहसास। लोगों से मुलाकातें हम करते हैं तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम उनसे कुछ हासिल करें। हम तो बड़ी सारी जगहों पे अपना आप दिखाने बताने के लिए पहुंचते हैं। अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को ढूंढें, और फिर ये कि सेहत अगर ठीक ना हो, सेहत अगर ठीक ना हो तो खाने पीने का कोई मज़ा नहीं होता। और अगर गुनाहों वाली बीमारी इंसान को लगी हुई हो ना, तो ना मज़ा शब बरात का, ना रमज़ान का, ना तिलावत का, ना सदकात का। थोड़ा सा तौबा का रंग गालिब आए ना, पहले उसकी शख्सियत एहसास नदामत वाली हो ना। हुजूर से पूछा गया तौबा क्या है, फरमाया शर्मिंदगी और नदामत का नाम ही तौबा है। तेरे अंदर नदामत पैदा हो गई, एहसास हो गया कि यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ हैं, तो यही तौबा है। तो इसके लिए तैयारी करें।